Welcome to today's special podcast featuring Mrs. Neera Paritosh, an educator, author, parenting mentor, and transformational guide with over 33 years of teaching experience, especially with senior secondary students. Driven by her deep understanding of human behavior and parent-children relationship, she launched the impactful campaign Parenting the Parent, aimed at helping parents grow emotionally alongside their children. An MCOM and MEd graduate, Mrs. Neera has completed over 45 certification courses in coaching, parenting, and personal transformation, including certifications from Guni Guru and Pooja Puneet Chennai. She is also the author of 2 inspiring books, Ripple of Words and Parenting the Parent, and has created audio-visual programs including her transformational 15-day course Better You, Better Child. Her remarkable work has earned her several prestigious recognition including the NRM Award, Top 10 Global Indian Excellence Awards 2025, Unstoppable 50 Pride of India, and the City Excellence Awards 2026. She has also been featured among the 100 Influential Women Life Wabi Sabi Life, recognized by Dainik Jagran among influential personalities of India, and honored as a guest of honor at the Walk of Pride and Power event hosted at Radisson Dwarka. Adding another feature to her cap, as she was also the second runner-up at VG Miss and Mrs. India. Through her books, podcasts, social media, and transformational sections, Mrs. Neera Paritosh continues to inspire individuals, families towards emotional growth, mindful parenting, and self-transformation. Please join me in warmly welcoming Mrs. Neera Paritosh. Hello, ma'am. Welcome to the podcast today. Thank you so much, Anita, for calling me here, reading a long list of awards and recognitions. I think 2-3 things have been added in this also. I got Rashtriya Ratna Samman recently in Bharat Mandapam. I got a recognition from many magazines. They have mentioned my name, my photograph. Every award gives so much happiness. We have the physical awards, the digital awards, but both give so much happiness. But in the physical award, that spotlight is there when you are, moving from your seat to the stage, taking your award, thanking the chief guest, and people are clapping. And that moment, 2 minutes it takes. Those 2 minutes are so important. आपको शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद भी याद रहेंगे. These are so important. And then for digital awards, I really want to say there are many unsung heroes we talk about. और इतनी सारी वो freedom fighters, उन सबका नाम आता है कि उनके बारे में उन्होंने भी इतना काम किया, इनका तो नाम ही नहीं हुआ, इन्होंने भी इतना काम किया. But I really feel started working about this after Corona. 2-3 years I was not regular with the work, but in 2023 I started. 23, 24, 25, 3 years ही तो हुए हैं. So I can say that it's raining awards now. हाँ, पहले तो कोई नहीं आया. हाँ, raining awards, especially from February 2026. So recognition मिलेगा, but because of digital awards. Every award has its own importance. कोई भी award हो, चाहे वो physical award है, digital award है, कहीं भी recognition है किसी magazine में भी, that will give you happiness. One more thing I want to say, आपको award ऐसे ही नहीं मिल जाता, आपको efforts करने पड़ते हैं किसी field में, whether you are working in the field of music or any other field. Award मिलता है, थोड़ा time लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है. But in that case also I want to see people say you put in efforts, you put in efforts. जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, I did 45-46 courses recently. So in those courses they specified this thing कि आपने जैसे पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको कितने एफर्ट्स लगेंगे ना, आपका सांस भी फूलेगा और आपको बहुत मुश्किल होगी एक एक कदम रखने में, लेकिन आप उस माउंटेन पे पहुंच जाएंगे. और उतरना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, उसमें कोई एफर्ट्स थोड़ी लगते हैं, आप ऐसे ऐसे उतरते जाते हैं. बट आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग कि उतरते टाइम भी एफर्ट्स लगते हैं. हाँ ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स, लेकिन आपने ज़रा सा आपका पैर गड़बड़ हो गया, आपको अपनी बॉडी थोड़ी संभाल के रखनी पड़ेगी, पीछे रखनी पड़ेगी. अगर आपने बॉडी ठीक से नहीं रखी तो आप सीधा खाई में भी जा सकते हैं. सो इट मीन्स पुटिंग इन पॉजिटिव एफर्ट्स एंड पुटिंग इन नेगेटिव एफर्ट्स will have some consequence or some repercussion. Why am I saying this? Because it is the base of my program mentioning in detail, or which we'll be discussing today.
मैम, यू स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड पेरेंटिंग द पेरेंट, हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, सो इन फैक्ट पेरेंटिंग वर्ड बड़ा कॉमन है ना, सो एवरीबडी थॉट पेरेंटिंग मतलब हाँ बच्चों के लिए होगा, बट देन आई सेड नो नो, इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट्स फॉर पेरेंटिंग द पेरेंट। पेरेंटिंग मीन्स, सो एवरीबडी थॉट सो इट मीन्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना, मतलब वो माँ बाप हो गए, ये बच्चा हो गया, सो इट्स फॉर देम ओनली, तो हमें तो सुनना नहीं है। सो आई सेड नो, इट्स नॉट फॉर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, द अदर पीपल आर also take care of the child, they love him so much and they want to do something positive for him always, so those people are also included in this. So it means basically making a good human being is the main objective. That is why I started this program. So parenting the parent doesn't mean only the biological parents, all your friends, colleagues, anybody who really loves you. One more thing, they because they thought अच्छा ये उन पेरेंट्स के लिए ना जो अभी पेरेंट्स बने हैं, नो नो, इट्स नॉट फॉर दोज पेरेंट्स ओनली, वो भी तो कभी बच्चे थे तो उनके भी तो पेरेंट्स थे, दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। वो जो पेरेंट्स जो अब ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं, दे ऑल्सो कैन लिसन टू दिस एंड दे कैन रियलाइज ओ हो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, दैट इज़ वाई द चाइल्ड इज़ एंग्री। तो ये सबके लिए है। सो बेसिकली आई रियली वॉन्ट द पीपल टू लिसन टू दिस so that they can also say they become a good human being and their mindset changes. Ma'am, what was your vision before starting this program? Why did you started it in the first place? So in fact, आम इंडिविजुअल की तरह अगर हम बात करें तो हाउ डू वी स्टार्ट आवर डे, वी हैव सो मेनी कंप्लेंट्स, अच्छा जो हाउस हेल्प ने ये कर दिया, ड्राइवर ने ये कर दिया, एंड देन वी से अच्छा कंट्री में पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे ऐसे है, पॉल्यूशन है, ठंड है, गर्मी है, जो भी, द होल डे वी आर कंप्लेनिंग। बट इफ़ आई टेल यू दैट इफ़ वी से ऑल द पीपल विल नॉट हैव द सेम कंप्लेंट्स, आप दूसरा कुछ और कंप्लेंट्स कर रहा होगा, तीसरा कुछ और कंप्लेंट्स कर रहा होगा, इफ़ आई से ओनली वन थिंग दैट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू इन द, सो आई एम डिस्कसिंग वेरी कॉमन थिंग्स विच आर अंडरस्टैंडेबल टू अ कॉमन पर्सन, and we say how a country is made. A country is made of its citizens. हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं ना, वो फलानी कंट्री, उसके लोग उसको यहाँ से यहाँ ले गए, the other country that is a very poor country, यहाँ लोग बड़े narrow minded हैं, यहाँ लोग ऐसे हैं. So ultimately we always say that a country is made up of its citizens. अब आप मुझे बताइए, अब हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, आप मुझे बताइए आपकी कंट्री में अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कितने लोग बीमार हैं, तो आप क्या बोलेंगे? काफ़ी लोग बीमार हैं, है ना, तो आप शायद मोर देन 90% भी कह सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, एंड देन इफ आई से, वो जो हम बोलते हैं, अगर हम वो तो दे आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सम डिजीज़, लेकिन अगर मैं छोटी बीमारी में ले लूँ, अगर उसके सिर में दर्द है, पैर में दर्द है या बाजू में दर्द है, तब कितने लोग बीमार हैं? 99% अब आपने कहा 99%, जिस कंट्री के 99% लोग बीमार हैं, तो उसके दो ही रीजंस हो सकते हैं ना, या तो हम बोलते हैं कि वो खाना ठीक से नहीं खाते, या वो हेल्दी फूड और उसके लिए लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वो इतना कुछ हो जाता है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, आई एम डिस्कसिंग द अदर आस्पेक्ट, एंड द अदर आस्पेक्ट इज आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट रियली मैटर्स। जैसे हम कहते हैं यू विल अट्रैक्ट, मैं यूज़ कर रही हूँ वर्ड, यू आर अट्रैक्टिंग अ डिजीज़, यू आर इन्वाइटिंग अ डिजीज़, मतलब आपके मन में कोई बात चल रही थी और वो थोड़े टाइम थी, आज आपके बॉस ने आपको डांट दिया और आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है और आप 2-3 घंटे गुस्से में कुछ भी बोलते रहे, पैर पटकते रहे, यू आर इन्वाइटिंग अ स्मॉल डिजीज़, जिसको बोल सकते हैं कि आज आपके सिर में बहुत दर्द हुआ, कि पेट में दर्द होने लग गया या कहीं और दर्द होने लग गया। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम, वो एंगर, इफ़ इट स्टेज इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड फॉर ईयर्स, 10 years, 15 years, अगर इतनी देर तक रह जाए, तो दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजीज़। जो लोग बोलते हैं ना, जो डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये किडनी डिजीज़ हो गई, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कैन गो थ्रू द बुक रिटन बाई लुइस हे, हील योर बॉडी, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उस बुक में एक एक रीज़न लिखा हुआ है कि अगर ये रीज़न था तो ये डिजीज़ है, ये रीज़न था तो ये डिजीज़ है। इफ़ द एंकर परसिस्ट इन दैट पर्सन
और इफ़ इट इज़ हैपनिंग एवरी डे, आपको लगता है 10 साल हो गए मुझे, एक्सप्लॉयटेशन ही हो जा रही है, रोज़ कोई ना कोई कुछ कह देता है, रोज़ ऑफिस में ये हो जाता है. सो इफ़ इट कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन बोथ द केसेस यू विल अट्रैक्ट दैट डिजीज़. और जैसे हम होते हैं वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं डिजीज़. मतलब हमारा रिस्पॉन्स क्या है उसमें डिजीज़ के लिए. अगर इज़ जस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग, और इन दैट केस वी अट्रैक्ट अ डिजीज़. So just let me conclude to what you said, that a change is required to understand a difference between positive and negative. Is that so? देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. जो हमने ये बात की कि आपकी कंट्री में मैक्सिमम लोग बीमार हैं, आप सोच के देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं दैट देर इज़ ओवर पॉपुलेशन, हम ऐसे कर देते हैं, या ये वाली प्रॉब्लम है हम ये सॉल्यूशन ले लेते हैं. यू आर गिविंग डिफरेंट लॉजिक्स और डिफरेंट पॉइंट्स. आप सोच के देखिए, ऑल द पीपल हु हैव सम इलनेस, और या उनको सिर्फ सिर में ही दर्द है, तो आप यही बोलते हैं ना, अच्छा अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए. तो आप सोच के देखिए, व्हेन मैक्सिमम पीपल आर इल, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड और हाउ विल दे do something for their country. And then we say one more thing also, अगर next step इसका लें तो नेक्स्ट स्टेप उसका ये भी तो हो सकता है दैट पीपल आर नॉट एजुकेटेड. जैसे मैं बोलती हूँ ना, पीपल आर नॉट एजुकेटेड, मैक्सिमम पीपल स्टार्ट सेइंग हाँ लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है ना. आर यू टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इन द सेंस ऑफ टीचिंग अल्फ़ाबेट्स, ABC पढ़ानी है, या उनको कोई डिटेल पढ़ाना है कि ये वाली प्रॉब्लम है, इसका रीज़न ये हो सकता है और इसका रेपरकशन ये होगा. ये वाली प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो उसका रेपरकशन ये होगा, इससे ये होगा. तो दोनों में से क्या, व्हाट आर यू टेकिंग एज एजुकेशन. तो दोनों केसेस में ही हम बोलते हैं दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. बिकॉज व्हेन वी से समथिंग इज़ इन्फ्लुएंसिंग द मासेस आर नॉट एजुकेटेड. उन बेचारों को तो ABC पढ़ना, 1 2 3 पढ़ना भी नहीं आता. जब वो 10th 11th 12th कुछ कर लेंगे तो दे विल हैव एक्सपोजर, शायद सारी बात समझना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम भी होती है, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम भी होती है. बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल लाइक, उनको लगता है हाँ जो भी प्रॉब्लम हुई ना बाबा जी सॉल्व कर देंगे. दे स्टार्ट गोइंग टू दैट पर्सन. देयर इज समबडी हु इज़ वेरी फॉक्सी, ही इज़ टेकिंग द पोस्ट ऑफ दैट लीडर. तो वो जो भी बोल रहा है, मतलब जो भी भड़का रहा है या जो भी वो बोल रहा है रिलीजन को लेके या किसी और चीज़ को शील्ड बना के, तो पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड. क्योंकि वो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, 10th 11th भी पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, नाउ देयर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग. तो उस चीज़ में लॉजिक निकालना शुरू हो जाएंगे, उस चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखना शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई आई रियली फील एजुकेशन इज़ नीडेड. मैम, जैसा कि आपने बोला एजुकेशन इज़ नीडेड, सो माइंडसेट चेंज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा. मीन्स एजुकेशन फ्रॉम डूइंग अल्फ़ाबेट्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आई रियली वॉन्ट टू से कि फर्स्ट स्टेप तो यही है ना कि हाँ आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, हाँ मैंने पढ़ा था तो ये भी हो सकता है. बट देर इज़ अनदर कैटेगरी ऑल्सो फॉर विच आई हैव मेड दिस प्रोग्राम, पेरेंटिंग द पेरेंट. दोज पीपल आर एजुकेटेड, उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और शायद PhD भी कर ली. हाउ दे फील नो एंड ऑफ देमसेल्स. उनको लगता है हाँ किसी से मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, मुझे तो सब आता है, तो वाई शुड आई लिसन टू एनीबडी. दूसरा क्लैन वो है जो ये बोलता है कि हाँ आई वॉज डूइंग दिस बिजनेस, आई हैव गेन्ड सो मच, मेरे पास इतना पैसा है, आई हैव अटेन्ड एवरीथिंग, ये कार है मेरे पास, घर है, फैमिली के पास, वाइफ के पास ज्वेलरी है, सबके पास सब कुछ है. वाई शुड आई लिसन टू एनीबडी. तो दोनों ही केसेस में मैं ये बोलना चाहती हूँ, दे नीड टू चेंज देयर माइंडसेट. इन द फर्स्ट केस दे मेड देयर माइंडसेट ऑन देयर ओन कि उनको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन दूसरे केस में मैं बोलूँगी कि माइंडसेट जो है वो बचपन में ही बन जाता है. ईदर यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी, और जो भी आपका एनवायरनमेंट है उससे आपका माइंडसेट बन जाएगा. फॉर एग्जांपल वो महाभारत वाली स्टोरी शायद सब नहीं पढ़ी होगी और सबको मालूम है. अगर हम कौरवों की बात करें तो कौरवों का माइंडसेट क्या था. देयर माइंडसेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शकुनी मामा, या आप जो भी बोलें कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, तो दैट नेगेटिव वाज कन्वेड टू देम.
पांडव हैं, उन्होंने भी सब कुछ सीखा। उन्होंने जैसे अर्जुन के लिए बोलते हैं, उसने धनुर्विद्या सीखी, आर्चरी सीखी, भीम ने सीखा, तो दी कौरव्स वर ऑल्सो लर्निंग दैट। लेकिन वहाँ एम बिल्कुल डिफरेंट था, एंड द एम वॉज मुझे उससे अच्छा सीखना है, ये चीज़ मुझे उससे अच्छा सीखना है। वो ये नहीं था मुझे सीखना है, मुझे उससे अच्छा सीखना, बिकॉज दैट वो कंपटीशन भी नहीं बोल सकते, वो ये बोल सकते हैं राइवलरी इन दैट सेंस कि कहीं ये मुझसे बेटर ना हो जाए, बिकॉज आई हैव टू स्नैच एवरीथिंग। हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, वो भी सॉल्व करना है। माइंड सेट चेंज इज़ रियली रिक्वायर्ड। जो हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, चाहे वो ABC पढ़ानी, 1 2 3 पढ़ानी है, 11 12 में पढ़ाना है, या आपने अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनाना है, तो वो पढ़ाएगा कौन? एट एवरी स्टेज यू नीड अ टीचर। सो जो ABC पढ़ा दे वो टीचर भी चाहिए, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा दे वो भी चाहिए, अपनी PhD भी पढ़ानी है तो वो भी तो टीचर्स चाहिए। तो अब आप सोच के देखिए, टीचर्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। और टीचर आपके बच्चे को पढ़ाई के अलावा और भी कुछ सिखा रहा है, बेटा ये गलत होता है, ये ठीक होता है। सो इट मीन्स अ टीचर इज़ नीडेड फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टीचिंग अ पर्टिकुलर स्किल, टीचिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आपको तो सबके लिए टीचर चाहिए था ना। अब आप सोच के देखिए, मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, मुझे लगता है वो तो गूगल जनरेशन है ना। आप गूगल पे देखिए, वी हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ बीइंग अ टीचर। तो आप UP का ही डिटेल अगर डाटा लेती हूँ, तो लास्ट ईयर 6.6 लाख पीपल अप्लाइड, एंड दिस ईयर ओनली 2.2 लाख पीपल अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। अगर इतना डिक्लाइन आ गया तो कोई रीज़न तो ज़रूर होगा ना। नोबडी वांट्स टू बिकम अ टीचर। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने बच्चे को, किसी और को कभी भी टीचर बनने का सजेशन नहीं दूंगी। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होंगे ना, और वो रीज़न्स कोई एक दिन में नहीं बने होंगे। अगर मैं रीज़न्स बोलना चाहूँ, बड़े लिमिटेड रीज़न बोलूँ, तो फर्स्ट थिंग, whenever the parents want to say something, उनके लिए बिल्कुल ईजी हैंडी सॉल्यूशन है कि उनके बच्चे का सिर्फ सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स अपनी ऑफिस से भी थी, यहाँ से भी थी, ये भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं टीचर पे। बोलने तो आए थे स्कूल ये नहीं करता, स्कूल वो नहीं करता, नाउ द टीचर इन चार्ज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और वो सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देंगे। नाउ दैट टीचर, बिकॉज ही इज़ एम्प्लॉयड इन दैट स्कूल, और वो उस लैंग्वेज में उनसे बातें नहीं कर सकता, तो शायद वो कुछ नहीं बोलेगा या बड़ा ही लिमिटेड बोलेगा। दूसरी चीज़, बच्चे के केस में तो चाइल्ड कैन से एनी थिंग, एनी एब्सर्ड थिंग इन क्लास, जिसको हम बदतमीज़ी बोलते हैं, वो बदतमीज़ी कर सकता है। वो इंडिविजुअली बदतमीज़ी कर सकता है, ग्रुप में भी बदतमीज़ी कर सकता है। देन द प्ली इज़ गिवन, कोई बात नहीं, एडोलेसेंट है, बच्चा है ना, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, भूल जाओ, ये प्ली दी जाती है। और आफ्टर कोरोना द प्ली हैज़ चेंज्ड। बोलते हैं अगर आपने बच्चे को डांट दिया तो उसको मेंटल इम्पैक्ट हो जाएगा, तो वो उस केस में भी कि मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। लॉज आर, द चाइल्ड लॉज आर वेरी स्ट्रिंजेंट, तो वो भी बच्चे के फेवर में ही है। नाउ द चाइल्ड नोज़ कि वो चाहे घर में कुछ करे, चाहे बाहर कुछ कर दे, चाहे स्कूल में कुछ कर दे, वो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो जो मर्ज़ी करे। आई रियली हैव वन क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ सिर्फ उनकी है, मेंटल हेल्थ टीचर्स की नहीं है, क्योंकि टीचर्स तो कुछ कह ही नहीं सकते। और थर्ड चीज़ जो आपको लगता है कि आप कहाँ बात कर सकते हैं, यू कैन स्पीक टू दी हायर अथॉरिटीज़ और दी गवर्नमेंट, आप बात करके देखिए। वेन एवर देर इज़ अ फाइट इन स्कूल, अच्छा टीचर्स की वहाँ ड्यूटी लग गई। अच्छा, वेन एवर द टीचर हैज़ सेड समथिंग टू द चाइल्ड, आपकी गार्ड्स के साथ ड्यूटी लग गई। स्कूल्स के बाहर बहुत एनिमल्स हैं, ये प्रॉब्लम है, ऐसे वाले लोग हैं, आपको डाउनग्रेडेड जिसको आप लोग कह देते हैं, आपको ये वाले लोग नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए, अच्छा टीचर्स की ड्यूटी लगा दो। इट मीन्स द डिग्निटी ऑफ टीचर्स हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। आप बताइए, इस डिग्निटी के साथ कौन टीचर बनना चाहेगा? इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स, आप सोचिए कि वो सोसाइटी को खोखला करना कितना आसान है ना। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आप हिस्ट्री का अगर एग्जाम्पल ले, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सो पॉपुलर, वर्ल्ड वाइड लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए। तो इंट्रूडर्स जितने भी आए, व्हेन दे वेंट बैक दे मेड इट अ पॉइंट कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दें। तो वो अगर उसमें थोड़ी सी बुक्स होती तो वो 2-3 दिन जलती, या एक दिन जलती, 1 घंटा जलती। वो यूनिवर्सिटी शायद
कितने दिन तक, 10-15 दिन तक, या शायद उससे भी ज़्यादा वो जलती रही, बिकॉज देयर वाज सो मच नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स देयर। उनको पता था, इंट्रूडर्स को पता था कि ये सोसाइटी ये फिर से खड़ी हो जाएगी इफ़ द नेक्स्ट जनरेशन गोज़ थ्रू दैट बुक, दैट नॉलेज टेन कर सकते हैं, वो दोबारा से आर्यभट्ट बन जाएंगे, दोबारा से चाणक्य बन जाएंगे, दोबारा से बन जाएंगे, तो उनकी नॉलेज को ही आग लगा दो। सो नॉलेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड द टीचर्स आर सो इम्पॉर्टेंट। द पर्सन हु इज़ टीचिंग यू अ स्किल, नॉलेज, दैट पर्सन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब और धीरे धीरे, टेलिंग यू इन एडवांस, और धीरे धीरे कोई टीचर बनना ही नहीं चाहेगा। आप सोच के देखिए कि आपके बच्चे को कोई भी किसी चीज़ में भी कुछ कहने वाला नहीं है, तो आपने अगर सोसाइटी को खोखला करना है तो फर्स्ट आपने भी अभी तक देख ही लिया होगा कि आप मैक्सिमम लोगों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दीजिए। मोबाइल का मेन पर्पस क्या था? कम्युनिकेशन ना। बट एवरीबडी इज़ होल्डिंग द मोबाइल, सीइंग सम कंटेंट द होल डे। उनको 5-6 घंटे पता भी नहीं चलते। उस 5-6 घंटे में पढ़ाई भी हो सकती थी, कोई और काम भी हो सकता था, एक्सरसाइज भी हो सकती थी, कितना कुछ हो सकता था। वी वुड हैव डेवलप्ड अ बेटर सिटीज़न फॉर द कंट्री अगर हमारे पास मोबाइल का रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होता। सेकेंड मेथड इज़, जितने लोग होश में हैं उनको होश में रखने की क्या ज़रूरत है? आप होश में होंगे तभी बात करेंगे ना कि ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होना चाहिए, ऐसे सॉल्व होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, पहले तो सिर्फ शराब की दुकानें होती थी, अब चेंज हो गया, उसमें भी इनोवेशन आ गया। इनोवेशन का मतलब नाउ द पीपल टेक ड्रग्स। ड्रग्स भी अब पुराना हो गया, वो पता नहीं क्या क्या आ गया है कि वो पेपर में वो नेक्स्ट जनरेशन कुछ ले रही है, मुझे नहीं पता उसका डिटेल में, वो डिस्कस भी नहीं करना चाहती। बट दीज थिंग्स आर सो ईजीली अवेलेबल, तो इसका मतलब पीपल आर हेडिंग टू दैट ऑल्सो। जब वो होश में ही नहीं रहेंगे तो वो क्या बात कर लेंगे, क्या डिस्कस कर लेंगे? द मैक्सिमम जनरेशन, जैसे हम सिटी की भी बात करते हैं कि पूरी सिटी, पूरी स्टेट, उनको शाम होते ही क्या चाहिए कि शाम होते ही मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं वो परचेज़ कर सकूं, बस। इसके अलावा उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड थिंग हो सकती है वॉट एवर द मीडिया इज़ शोइंग। आप सोच के देखो, आपके पास सीरियल्स से लेके, मूवीज़ से लेके क्या कंटेंट आ रहा है, धीरे धीरे वो और ज़्यादा चेंज, और ज़्यादा चेंज, और कई बार तो वो ऐसा होता है कि आपका दिमाग ही हिला दे। तो जब हमारे इस एज पर ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है, तो बच्चे को इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो ईजीली अवेलेबल। दे आर नॉट टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दैट कंटेंट विच इज़ रिस्पेक्टेबल इन सम बाउंड्रीज। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो लगता है हमने रेवेन्यू देना, हमने प्रॉफिट कमाना है, और दैट विशियस सर्कल इज़ गोइंग अगैन एंड अगैन। दे से कि अच्छा लोग देखते हैं इसलिए हम दिखाते हैं, एंड वी से द प्रॉब्लम इज़ इन मेकिंग दैट। तो फर्स्ट टाइम जब बना था, अगर शायद तभी स्टॉप कर दिया जाता तो शायद हम इस लूप में नहीं फंसते, शायद। एंड द फोर्थ थिंग इज़, अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल ढंग से बताते हैं कि अच्छा आपको डिसिप्लिन वे में लाइफ जीनी है, आपको ये करना, आपको ये, कुछ अच्छी बातें अभी भी हैं, अभी भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। नाउ इफ़ दैट पर्सन, दैट चाइल्ड सेज दिस इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, व्हेन ही सेज मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, अच्छा देन आई डू एक्सरसाइज, मंत्र जाप करते हैं, थोड़ी सी पूजा करते हैं, देन वी डोनेट दिस थिंग, and all the people will make it a point to make fun of him, and to this extent that in future वो ऐसा कुछ ना करे, उसको आज ये रियलाइज़ हो जाए कि वो जो भी कर रहा है वो सब कुछ गलत है। तो इसका मतलब आपने तो उस पर्सन से जो वो अच्छा करना भी चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तो साइड हुए थे, आपने तो वो भी छीन लिया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दिस फ्रेम नाउ कि इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता या हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहती हूँ। दैट इज़ वाई आई मेड दिस प्रोग्राम। मुझे लगता है कि सिखिज़्म में जो एक चीज़ बोली जाती है वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, कि आप कुछ भी अचीव करना है ना, तो आपको करना पड़ेगा जप, तप, संयम। तो संयम मतलब संयम, संयम मीन्स पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो 6 मंथ्स में आए, 1 ईयर में आए, 5 ईयर्स में आए, उसमें टाइम लगेगा। और यहाँ तप का मतलब है तपस्या, कि आपको जो भी काम करना है उसमें टाइम लगेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने 19 ईयर्स तक पढ़ाई की या मैं टीचर बनी, तो 19 ईयर्स तक कोई एवरेज पढ़ाई नहीं की कि 33% आ जाएंगे, बस ठीक है। मुझे कुछ रैंक भी अचीव करना था, तो वो भी तो तपस्या थी। तो तपस्या वही नहीं है जो ऋषि मुनि कर रहे हैं, जो हमने कहा
बिकॉज दे वॉन्टेड टू अचीव गॉड, उनका पर्पस था, तो उन्होंने उसके लिए वो जो है 10 साल 15 साल या पूरी उम्र वो तपस्या की होगी। लेकिन आपके केस में तपस्या क्या है कि आप रेगुलरली वो चीज़ करते ही जा रहे हैं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कोई भी कुछ कह रहा है, आप कोई परवाह नहीं करें, लेकिन आप कंटिन्यूसली वो चीज़ कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं। एंड देन जब हियर मीन्स जो भी है आप बड़े डिसिप्लिन वे में वो कर रहे हैं। जैसे हम कहते थे ना कि आप 108 बार ये जाप कर लो, इतनी बार ये जाप कर लो, इतनी बार ये पूजा कर लो, लेकिन वो रेगुलरली करनी है। तो जप का मीनिंग वो भी हो सकता है। और जप का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जो है किसी ख़ास प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। हम सिर्फ वो उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी भी बात कर रहे हैं कि आप जिम भी जाते हैं, आपको बॉडी बनानी है, तो एवरी डे 5 minutes to 5 यू आर रीचिंग द जिम, और आप वो जो भी एक्सरसाइजेज करनी है, जो भी करनी है, जो भी कुछ है वो सब आप कर रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक अ बॉडी, यू वॉन्ट टू मेक अ गुड बॉडी। नाउ योर फ्रेंड्स आर सेइंग अच्छा आज चलते हैं ना, आज ये मूवी देखने चलते हैं, आज ये चलते हैं, तो आप उसके लिए भी मना करें, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी डिटर्मिन्ड कि नहीं नहीं मुझे ये काम करना ही है, मुझे जिम जाना ही है। सो एवरी डे यू आर डूइंग इट, अल्टीमेटली 100% उसमें रिस्पॉन्स आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हम जो कर्म करते हैं उसका रिस्पॉन्स 100% आता है। किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बिकॉज द प्रोसेस इज़ थिंकिंग, डूइंग एंड बीइंग। थिंकिंग मतलब हम जो सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोचते हैं, यूनिवर्स में वो ये नहीं कह रहे कि वो सब्जेक्टिव नहीं हो रहे कि ये अच्छा कर्म है, ये गंदा कर्म है। आपने जो जैसा सोचा वैसा ही वो रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर डूइंग मतलब जो हम सोचने की बात कर रहे थे, अगर आप नेगेटिव सोचते जा रहे हैं तो आप काम भी वैसे ही करते जाएंगे। बहुत ही गुस्से में आ जाएं, आप जब तक ऑफिस पहुंचेंगे, आपको जिस पे बहुत गुस्सा आया हुआ होगा, आप जाके उसको पता नहीं क्या क्या बोल देंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, नेगेटिव करेंगे ही करेंगे। तो मतलब आपने कहा थिंकिंग आपकी सोच बनाती है कि आपका कर्म कैसा होगा, डूइंग, और आप कंटिन्यूसली वही करते जा रहे हैं 4 साल से 5 साल से। तो बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, आप कैसे बीइंग बनते हैं। तो 100% आप कुछ सालों में सब लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही लड़ाका है, इसको तो सब नेगेटिव ही बोलता रहता है, तो सबसे लड़ता ही रहता है, ये तो है ही ऐसा। तो अल्टीमेटली आप वैसे बन जाएंगे। तो आई रियली वॉन्ट दैट एवरीबडी, because I'm saying not we discussed in the beginning na, that not only biological parents, everybody, all the other persons, so everybody listens to this program and you know मैं सिर्फ efforts ही कर सकती हूँ, मैं करती जा रही हूँ इतने सालों से efforts। I'm getting up at 3 o'clock in the morning, I'm making the scripts, आई एम गेटिंग इट रिकॉर्डेड कि अच्छा कोई तो सुनेगा, कोई तो पॉजिटिव होगा ही होगा। लेकिन अल्टीमेटली लोग अगर पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क करना सीख जाएं और बेटर हो जाएं, तो आवर कंट्री विल डेफिनेटली बी बेटर। That is a very nice initiative, ma'am. Thank you so much for coming to the podcast today. It was a really insightful conversation. Thank you so much, Anita. Thank you so much for giving me a chance. Thank you.